Guests, floor members, and our distinguished speakers. I am Dr. Jaspreet Thakkar, and it is my absolute pleasure to be your host for this exclusive and insightful session on wealth and estate planning. At FICCI Flow Jaipur, under the inspiring leadership of our chairperson, Mrs. Raghushri Poddar, we are committed to empowering women with knowledge that transforms lives. Now, FICCI Flow Jaipur has adopted Sapna Bunkar Kendra powered by Revi. Please have a look at the hand-woven sarees before you leave. It is a noble cause. Now, this is not just a financial session. It is power-packed discussion designed to give you practical tools to secure your financial future. And special thanks before we begin. A heartfelt thank you to our esteemed sponsor, Client Associates, for collaborating with us to bring this insightful event to life. Your support is empowering. Flow members with financial wisdom is truly commendable. Now, I would like to invite our chairperson, Mrs. Raghushri Poddar, on stage. And we are honored to have us some of the finest minds in investment and estate planning who have dedicated their careers to helping India's top business families grow and safeguard wealth. So among us we have Mr. Nitin Agarwal, Director, Investment Research and Advisory, Client Associates, a thought leader in investment research. Nitin has played a pivotal role in strengthening Client Associates' financial strategies while serving some of India's most distinguished business families. And amongst us we have Mr. Neeraj Agarwal, Director, Vista ITCL India Limited. A leader in estate and succession planning, Mr. Agarwal brings global expertise to help families structure their wealth for a seamless legacy. And amongst us we have Mr. Ashish Saxena, Associate Director, Wealth Client Associates. With over 15 years of experience in wealth management, Ashish has advised and managed large family wealth portfolios across major financial institutions, including RBS, Standard Chartered, and ICICI. Their collective knowledge is a gold mine of financial wisdom. And tonight, we get an exclusive opportunity to tap into it. So let's start with the show. And it's an engaging talk show featuring our distinguished panelists all. And now I hand over the mic to Mrs. Raghushri Poddar. She will start the talk show. Namaste everybody. And आज का जो है बहुत important है because wealth, money and finance जिसके बिना जीवन का कार्यशैली उसी पे आधारित है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुत अच्छी फाइन पैनलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को शेप अप किया है, बहुत सारा स्ट्रेंथ टू आवर प्रॉफिट्स जिसको हम बोलते हैं कि व्हाट यू अर्न हाउ यू ग्रो, कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। तो आई थिंक इस टर्म को ये लोग प्रूव करेंगे हाउ। एंड सो बिफोर दैट वी इनवाइट a felicitation to our esteemed guests. Yeah, for felicitation, I would invite Swati Chawda to facilitate Mr. Nitin. And Rashmi Sablawar to facilitate Mr. Neeraj Agarwal. And Seema, and this is Seema Agarwal from Mr. Ashish Saxena.
So before हम start करते हैं, my question to Nitin is कि how do you convert your profits and your circulation money to wealth? मतलब हम जो पूंजी हमारे पास है उसको हम कैसे convert करें and what are the intelligent steps? Thank you everyone. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट आंसर भी बहुत सिंपल है. बेसिकली लास्ट 4 साल में सबने देखा कि मार्केट इतना भाग रहा है, सबको लग रहा है कि हर साल में भी डबल हो जाएगी. ठीक है, जो हुआ भी, बट सी एक फंडामेंटल है वेल्थ क्रिएट करना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रॉफिट कैसे करना, मैं बोल रहा हूँ वेल्थ कैसे क्रिएट करना. वेल्थ और प्रॉफिट में डिफरेंस है. वेल्थ क्रिएट होता है व्हेन यू थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, पहले साल में तो आपको 50% प्रॉफिट होता है, सेकेंड ईयर में भी नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज वेल्थ तो वेल्थ क्या है? वेल्थ क्रिएट करना इज अ प्रोसेस. और वो प्रोसेस क्या है? देयर इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस दैट यू टेक ओवर ईयर ऑन ईयर दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन वेल्थ क्रिएशन, राइट? एंड वेल्थ you do not just create for yourself, for your life. You create generational wealth, and that is the whole concept. Wealth is created with a process in mind, having a long-term vision, with a series of decisions that you take to get over the time, and that is, accompanied by a patience. The patience is the key word here. Everybody talks about कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आज इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर लो, 1 साल में पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है. कोई लकी ही होगा कि उसका 50% प्रॉफिट बन गया और फिर वो सोचते हैं हम तो एक्सपर्ट हो गए. ठीक है ना, मैं भी सोचता था पहले. ठीक है, बट अगर आप किसी भी, चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लो, आप एफडी ले लो, पैसा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है, वो कंपाउंड होता है. 100 रुपये पे 20 रुपये कमाए, फिर आप 120 पे 20 कमाओगे, फिर 144 पे 20% कमाओगे. तो वो कंपाउंड होना चाहिए. और उसमें क्या है कि आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लगता है, आपको रोज़ मार्केट नहीं देखना है, आपको एक बार इन्वेस्ट करना है और बस उसको मॉनिटर करना है. तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करने का. ये आपने सही बताया कि वेल्थ क्रिएट करने का एक सिंपल प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस के अंदर हमने एक प्रॉफिट कमाया, सपोजिंग 10 रुपये में से 8 रुपये का एक्सपेंस हुआ, 2 रुपये बचे, एज वी ऑल डू. सो दैट 2 रुपीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसको अप्रोच करना चाहिए? हाउ? जैसे विमेन बाइज ज्वेलरी, समबडी इज बाइंग फंड्स, कोई सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, बट आज उस 2 रुपीज़ को हाउ शुड अ वुमेन बीइंग इनटू विमेन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे करेगी वो उसके लिए फ्यूचरिस्टिक हो? देखो, अगर आपके पास 100 रुपये से 20 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 20 रुपये आप किसी एक चीज़ में नहीं डालने. जैसे अगर आजकल स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है तो आपको 20 रुपये स्टॉक मार्केट में नहीं डालने हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो 20 रुपये भी ख़त्म हो जाते हैं. तो बेसिक हमें क्या करना होता है कि हमें अपना पैसा डिवाइड करना है डिफरेंट एवेन्यूज़ में. अब उसमें कुछ पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल दो, और वो डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे और आपकी जैसे एज क्या है. अगर आप यंग हैं तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपके पास रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है. बट अगर आप 50 से अबव हो तो आपको पैसा ऐसी जगह डालना है जहाँ सेफ्टी ज़्यादा हो, चाहे रिटर्न थोड़ा कम मिले. तो अगर कोई यंग बंदा है, हम उसको क्या बोलते हैं कि आप अपना 70% या 60% पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो और उसको छोड़ दो 10 साल के लिए, वो अच्छे से ग्रो करेगा. बाकी 30% आप यहाँ चाहे एफडी में डाल दो,
चाहे बॉन्ड्स में डाल दो, थोड़ा गोल्ड ले लो, ठीक है। तो आप डाइवर्सिफाई कर लो, क्योंकि कोई एक एसेट क्लास हमेशा प्रॉफिट नहीं देती है। इसलिए आप बोलते हैं आप डाइवर्सिफाई कर दो, डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करो, तभी आपका पैसा लॉन्ग टर्म में, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, अगर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। मार्केट नीचे जाता है तो आपने एफडी है, उसमें तो आपका रेगुलर आना ही आना है, ठीक है। बट अगर जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड शायद कम दे देगा। तो बैलेंस आउट होना चाहिए, एक बैलेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मार्केट कहीं पे भी जाए, कुछ भी हो, मेरा पैसा एक स्टडी बेस से बढ़ता रहे हर साल। तो जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं वो बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक होता है। या कोई बिजनेसमैन है, उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है, उसके पास काफ़ी वेल्थ है, वो बोलता है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ उसको रोज़ तो चाहिए नहीं खर्च करने के लिए, उसका घर तो 100 करोड़ से तो नहीं चल रहा रोज़ का, ठीक है। उसको रोज़ कितने, एक साल में कितना खर्च कर लेगा, 2 करोड़ 3 करोड़। अब मान लो मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ उसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो बोलता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी, आप इन्वेस्ट कर दो 10 साल के लिए, ठीक है। और हम उसी हिसाब से बोलते हैं कि आप 70% इक्विटी में डाल दो। और हम क्या बोलते हैं कि अगर हर साल 15% रिटर्न आया तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और वो 80 करोड़ उसका कुछ, उसमें से 70% हमने इक्विटी में डाल दिया, थोड़ा सा गोल्ड ले दिया। अब लोगों के पास घर भी होते हैं, बोलते हैं रियल एस्टेट भी लेना है, ठीक है। तो जो भी पर्सन की एक तो कैपेसिटी और उनका क्या रिस्क प्रोफाइल है, उनकी रोज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके घर शादियाँ तो उनको पैसा चाहिए तो उसके लिए अलग रख लो। तो हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो आपने बोला कि जो आप कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो शायद आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। सो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, सो वी कनेक्ट टू अ प्रोफेशनल कंपनी टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, या हमें खुद को स्टडी रिसर्च करनी चाहिए, या जिन्होंने रिसर्च की है वो एक एसोसिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट एसोसिएट्स और सिमिलर टू इट, सो डू यू थिंक वी शुड अप्रोच देम, दैट शुड बी द राइट वे? क्योंकि आज क्या होता है कि पैसा है बट उसको कैसे करें, ट्रस्ट, विमेन के पास एक सबसे वीक पॉइंट होता है ट्रस्ट फैक्टर। सो हाउ डू दे गेन ट्रस्ट टू इन्वेस्ट, विद whom एंड व्हाई? देखो, सिर्फ वुमेन के पास नहीं, हम भी नहीं ट्रस्ट करते अपने पैसे को, ठीक है ना। हम इंडिया में तो स्पेशली हम अपने पैसे का कंट्रोल किसी को नहीं देते, जब तक हम उसको 2 साल तक टेस्ट नहीं कर लेंगे, यार एक पैसा भी इतना चुराए, ठीक है। बिकॉज वो एक ह्यूमन नेचर है। अब इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो मेरा पैसा है ना, तो मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ उससे, ठीक है। मेरे को लगेगा कि यार मेरे से बेटर काम कोई नहीं कर सकता इस पैसे के लिए, बट ना वहीं बायसनेस आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खुद मत पढ़ो, बिकॉज आपको खुद भी पढ़ना है, तभी आप इन्फॉर्म्ड रहोगे। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है ना, अब जैसे मार्केट गिर रहा है, आप कहोगे बेच दो, सब कुछ बेच दो, ठीक है, वो होता है अनएजुकेटेड डिसीजंस। उसमें गलती नहीं है, उसमें लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। बट आपको अगर आपको नॉलेज नहीं है, पहले तो आप किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। जैसे हम लोग जब जाते हैं, क्लाइंट्स बहुत बड़े क्लाइंट हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी नॉलेज है, बट वो बोलते हैं यार हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा डेली काम नहीं है, हमारा काम है बिजनेस रन करना। तो आप हमें बताओ कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि आप मैनेज करो हमारे लिए, हमें सिरदर्दी नहीं चाहिए। आप बस हमें हर महीने बता दो कि अच्छा हमें और क्या करना है आगे। तो एक एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप डिस्कस करो, वो आपका एक पूरा प्लान बनाएंगे, आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपकी लाइफ कहाँ है, आपकी लाइफ स्टेज क्या है, आपकी अगले 5 साल में क्या रिक्वायरमेंट है, 10 साल में क्या है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न, ठीक है, आपको कितना वेल्थ क्रिएट करना है। फिर आपको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर तो बोलेगा मेरे को तो करोड़ों रुपए चाहिए, बट 10 लाख से करोड़ों रुपए बनाना इस लाइक मार्केट में तो नहीं बन सकता ऐसे। तो वो एक्सपर्ट का काम है आपको एजुकेट भी करना कि इस पैसे को अगर आप इतना करोगे तो इतना बन सकता है, ठीक है। 100 करोड़ नहीं बन, 10 लाख का 100 करोड़ नहीं बनेगा 10 साल में। तो एक एक्सपर्ट एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब मार्केट में जैसे आप लोग भी हैं, आपने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो कई लोगों को नहीं पता होता कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहले स्टार्ट करना होता है, पहले आप एक्सपर्ट से बात करो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, और मुझे आगे जाके इतना पैसा चाहिए होगा,
तो आप मेरा इन्वेस्ट करो, तो वो आपको बताएंगे कितना इक्विटी में करना है, कितना एफडी डालना है, कितना गोल्ड लेना है, या आपको किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपके पास घर नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको पूरा एक डिटेल्ड प्लान बना के देंगे, फिर आप भी पढ़िए कि यार इक्विटी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपर्ट पे छोड़ दो, और एक्सपर्ट हैं जो आपको पूरा एजुकेट करेंगे कि आप वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और आपका अग्रीमेंट देंगे उस पर कि आपको समझ में आया। जब तक आपको समझ नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, एक्सपर्ट की एडवाइस और अपनी भी नॉलेज होनी चाहिए इसके। बहुत सही बात बोली कि एक्सपर्ट के साथ सेल्फ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले देखते थे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एंड उस जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बड़े डिसीजंस लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली होने से इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वन पार्टनर इज लेफ्ट, स्पेशली विमेन, क्योंकि मैन हैज ऑल द फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल्दो विमेन इज अर्निंग, बट उसकी अवेयरनेस नहीं कि उसके नाम से क्या है, शी जस्ट साइंस पेपर। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फैमिलीज में इस तरह की सिचुएशन आफ्टर कोविड इज सीन। तो जब उसको पता पड़ता है कि ये उसके पास है एंड हाउ शी मैनेजेस इट, तो बहुत लेट होता है। तो ये अवेयरनेस को क्यों नहीं हम विमेन तक एट अर्ली स्टेजेस पहुंचाएं कि हाउ शी कैन कंट्रोल हर वेल्थ, विच वो अननोइंगली हम बहुत ट्रस्ट में रहते हैं, फैमिली स्ट्रक्चरिंग इतने साल से है, बट अब आप देखेंगे शिफ्ट हो रहा है। तो हाउ डू यू ऑल एक्सपेक्ट कि विमेन को कैसे कैसे अपने आप को नॉलेज में रखना चाहिए फॉर दिस? आई थिंक देखो, पहला तो जो मैंने बोला है, एजुकेशन इज़ द की, ठीक है। इसमें अभी भी यहाँ पे बैठे हैं उनको थोड़ा नॉलेज है, या किसी भी वे से उनको नॉलेज है, देन लॉट ऑफ विमेन उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। उनको ये भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, एंड मैंने भी देखा है अपने कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज उनका कभी फोकस ही नहीं रहा है, ठीक है। स्पेशली बिजनेस क्लास फैमिली में जहाँ वेल्थ है ना, तो उनको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, पैसा तो आ ही रहा है, ठीक है, हमें तो पैसा मिल ही रहा है, ठीक है ना। बट द थिंग इज, मान लो जैसे आपने बोला कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो देन दे गेट यू नो लॉस्ट। अब क्या करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है कि भाई मेरे को भी बिजनेस में, मेरे को भी स्टॉक मार्केट करनी है, बट एजुकेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप होता क्या है, ठीक है। अगर कल को आपको करना पड़ेगा तो कैसे करना है, किसको अप्रोच करना है, ठीक है ना। वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और हम भी करते हैं, हम भी काफ़ी इवेंट्स करते हैं। तो विमेन इन फाइनेंस इज़ अ बिग टॉपिक ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में नहीं है। आपको लगेगा कि इंडिया में लोग लेडीज़ को नॉलेज नहीं है, ग्लोबली भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं, अब इतनी विमेन फाइनेंस में आ गई हैं, हमारी कंपनी में इतनी है, ठीक है ना। तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। द ओनली डिफरेंस इज कि दे डिसाइडेड कि उनको सीखना है, ठीक है ना। तो आजकल तो यूट्यूब है, मतलब थोड़ा सा अगर एजुकेशन शुरू करो, ठीक है, उसके बाद आप एक्सपर्ट से एडवाइस लो, बहुत ईजी है। लाइक मैंने सिंपल शुरू में बोला, प्रोसेस बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट दैट कि अगर किसी को सीखना है ना, वो सीखना है, एफर्ट मारना पड़ेगा, और इट्स नॉट लाइक कि आपको करना पड़ेगा, बट अगर करना पड़े तो आपको आना चाहिए, और एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए किसको रीच आउट करना है, जिसको आता है, ठीक है। वो अगर खुद को पता है ना, देन यू कांट बी मिसगाइडेड, ठीक है। तो कोई भी कुछ बोल देगा कि यार 100 करोड़ एक स्टॉक में डाल दो, ठीक है, तो कैसे डाल दो यार, बताओ, लॉजिक तो बताओ। ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्यों डाल दें, बताओ ऐसा क्या है उस स्टॉक में। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, तो अगर दूसरा बंदा जो एडवाइस कर रहा है ना, उसको भी लगेगा यार कि क्या बोल दिया मैंने। तो उनको भी पता होना चाहिए कि सामने वाला ना थोड़ा स्मार्ट है, ऐसे नहीं उसको कुछ भी बोल सकते। तो एजुकेशन इज द की है, राइट। सो एक्सपर्ट, एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंसली आपको पूछना चाहिए। आई शिफ्ट माई माइक टू नीरज जी। नीरज जी आपको बताएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स from Piramal family to Kishore Biyani, and how investment into can take you where, and how wrong investment and steps. So all to you, बताइए। मैं खाली एक इसमें 2 ही पॉइंट ऐड करूँगा। हम सब बिस्लेरी को जानते होंगे, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो स्ट्रैटेजी चला रही है फैमिली में, वो फीमेल है। अच्छा, अब मुकेश अंबानी जी के 2 बेटे 1 बेटी है, 3 बिजनेस है उनके। एक ऑयल एंड गैस का बिजनेस है,
एक रिलायंस रिटेल का बिजनेस है और एक जियो का बिजनेस है। इन तीनों बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बिजनेस है उनको उनकी बेटी संभाल रही है। तो बहुत एग्जाम्पल है। जो हॉस्पिटल चेन है बहुत बड़ी, ताज जीवीके लिस्टेड कंपनी है। तो ताज मैनेज करता है और प्रॉपर्टी कहाँ पे खरीदनी है, क्या से उसको डेवलप करना है, जो टूरिस्ट को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, वो प्रमोटर की बेटी शालिनी वो चलाती है। तो बेटे बड़ा बिजनेस संभालते हैं। तो ये हमारे मन का ही वो है कि हमें खाली साइन करने हैं। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। आप जो साइन करते हैं उसके पीछे एक चीज़ जो शायद बहुत एक्सप्लिसिट नहीं होती, वो ये होती है कि आप सबकी फैमिलीज में जो व्यक्ति बिजनेस चला रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल आप प्ले करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप इसको ढूंढेंगे तो कम से कम 60% केसेस में सही है। वो इसलिए है कि आपके घर के बाकी व्यक्ति जो बिजनेस चला रहे हैं उन्होंने सबने पर्सनल गारंटी दी हुई है, लोन लिया हुआ है, डे टू डे बिजनेस है, कंपनी में डायरेक्टर है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, बजाज फैमिली यहाँ से है और बियानी फैमिली भी यहीं से है, ओरिजिनल रूट्स। आज दोनों अलग अलग जगह पे हैं। एक का शेयर 2000 रुपये का, एक का शेयर 50 पैसे का है। दोनों अच्छा किया, समय अच्छा आता है। बट याद रखिए, जो भी वेल्थ आपके नाम पे है वो रिंग फेंस्ड है। रिंग फेंस्ड है, इसीलिए आपके नाम पे वेल्थ क्रिएट की जा रही है। भाई मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा आप सब लोग फ्लाइट में बैठे हैं तो हर सीट के नीचे एक सेफ्टी जैकेट होती है। क्यों होती है? सबसे सेफ ट्रैवल मोड है एयरप्लेन का, बट एक्सीडेंट की केस में डेथ सबसे ज्यादा है। तो इसी प्रकार से जब बिजनेस करते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न बिजनेस में मिलेगा, बट रिस्क भी सबसे ज्यादा उधर ही है ना? क्योंकि अगर कुछ खराब हुआ तो टक टक टक। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फैमिली टू इन्वेस्ट इन फीमेल्स नेम, बिकॉज वो बिजनेस में नहीं है। तो जो वेल्थ उनके नाम पे, मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे नाम पे ही म्यूचुअल फंड बॉन्ड सिक्योरिटी है, तो कल कोई लायबिलिटी खड़ी हुई तो वो एसेट लॉक हो जाएगी। बट जो मैंने वाइफ को दे दी, बेटी को दे दी, वो तो सिक्योर है। हर केस में यही है। तो आप इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसके पीछे की स्टोरी ये है। बट जब आप इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं तो आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। और जैसा सर ने कहा कि अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आए तो आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आपकी अवेयरनेस जरूरी है। और आपकी अवेयरनेस को अगर एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल मिल जाए तो आपका काम आसान, क्योंकि वो आपको राह दिखा रहा है। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सही क्वेश्चन पूछ सके, तो आप सब पूछ लेते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स इट टुगेदर एवरी केस। नहीं तो जब इन्होंने बोला कि जो विमेन के नाम पे जो होती है, हाउ अबाउट टैक्सेशन, जैसे अगर आपने बोला कि घर एक लेडी के नाम पे लिया और उसके अंदर टैक्सेशन को बेनिफिट होता है, कैसे इनको हाउ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन नेम ऑफ विमेन। तो आपका कितना बड़ा रोल है मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ। एक तो बताया मैंने आपको, दूसरा इंडिया में हर इंडिविजुअल सेपरेट है, पैन कार्ड सेपरेट है। तो मान लीजिए मेरे नाम पे इनकम है तो मैं टैक्स भर रहा हूँ और टैक्स बढ़ता रहता है जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेरी वाइफ के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, ताकि जो टैक्स का बेनिफिट उन्हें अवेलेबल है वो भी हो जाए, चाहे वो ATC हो, चाहे वो ATD हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के लोग हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, टैक्स का पार्ट। दूसरी चीज़, आज भी एटलीस्ट 95% केसेस में जितनी भी बिल लिखी जाती है
वो ये लिखी जाती है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो सब कुछ मेरी वाइफ का, उसके बाद ही बच्चों का। तो अगर आपके पास एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, मतलब इन द सेंस फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ऑल द वेल्थ विल कम टू you may give it to the person who will cry the most, but that should not be the reason decision. याद रखिए, बिजनेस हमेशा करेंगे कैपिटलिस्ट माइंडसेट से। जैसे कि आप अपना पैसा वहां डालते हैं जहां पे सबसे कम रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न है, बट परिवार में सोशलिस्ट माइंडसेट काम करता है। उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बचाएंगे जो सबसे कमजोर हो। यही कहानी है। आप दोनों हेड पहनते हैं, दोनों हेड पहनते हैं, तो इसी हेड को पहन के अगर आप इसके नॉलेज भी डेवलप कर लेंगे, तो अगर आपको कभी वो रोल प्ले करना पड़ा तो आप उसे इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से अगर आपको अभी मैराथन भागनी है तो उसकी तैयारी 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने से पहले शुरू होती है। एक दिन सुबह उठ के आप बोले चलो आज यहाँ से वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं होने वाली। उसी तरीके से आज आपका रोल इम्पोर्टेंट है। आपके जो फैमिली के सीएस हैं वो यही समझाते हैं कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट्स वाइफ के नाम पे करो, इनके नाम पे करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, विल लिखो। तो आपके पास ये जागरूकता, आपकी नॉलेज, आपके स्किल सेट बहुत जरूरी है। एंड द राइट काइंड ऑफ एडवाइस दैट कम्स टू यू, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन ensuring that you are able to take the family to the next level from a wealth perspective if a situation arises and you know what you are taking care of. अब जहां तक टैक्स की बात आती है, कई चीजें इसमें रोल प्ले करती है। थोड़ा सा मतलब देखिए, टैक्स एफिशिएंसी और टैक्स इवेजन अलग अलग चीज है। एक गैर कानूनी है, एक अलाउड है, ठीक है। तो मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा, इवेजन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि गैर कानूनी है। जब भी आप फैमिली में बिजनेस होता है तो बिजनेस कंपनी है, तो कंपनी में आपको सैलरी दिखाते हैं, आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, बट काम नहीं कर रहे सैलरी दिखाते हैं तो। बट अगर कंपनी से अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पहले कंपनी की इनकम पे टैक्स लगेगा, फिर निकालेंगे तो टैक्स लगेगा। तो आपके नॉलेज, आपके स्किल सेट टैक्स एफिशिएंसी की तरफ डायरेक्ट करते हैं। फिर कंपनी के प्रॉफिट्स को वापस क्यूमुलेटिवली डाला जा सकता है। आप उस फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं जो स्किल सेट्स आपके पास हैं, जो आपकी एजुकेशन हैं। भाई आप चाहे एक हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस करें या आप एक अच्छा सा जो भी इंटरेस्टिंग है, तो उसकी पूरी की पूरी फंडिंग मेन बिजनेस से आ सकती है और काफ़ी सारे सपोर्ट मिल सकते हैं। तो ये जो टैक्स वाले मैटर्स हैं, इनको डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें एक इंडिविजुअली बेसिक पे टैक्स को नहीं देखा जा सकता, तो हर फैमिली की सिचुएशन अलग हो सकती है, हर फैमिली के सिनेरियोज अलग हो सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, और अगर आप देखें तो जिस कंपनी को आप, जिस फैमिली को जयपुर या फिर राजस्थान या फिर भारत में जिस कंपनी को आप सबसे अच्छा मानते हैं और आपको लगते हैं कि यार ऐसी कंपनी होनी चाहिए हमारे पास, उस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखिएगा तो आपको 2-3 चीज़ें जरूर दिखेंगी कि फीमेल्स के पास भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है और उन्होंने उसका सक्सेशन प्लान काफ़ी अच्छी तरह किया हुआ है, ताकि हर परिवार की फैमिली के लिए बेनिफिट्स आए, परिवार का हिस्सा है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मिलता रहे और इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो कि डिस्प्यूट हो, झगड़े हो, एसेट टूटे और फिर हर किसी को शुरू से शुरू। राइट, जैसे आपने बोला कि सक्सेशन प्लान और विल, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि वंस वेल्थ इज क्रिएटेड, हमने क्रिएट की, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हम हर आदमी ये सोचता है, इट्स अ बेसिक थिंग कि द अदर पर्सन डाइज, राइट, इट इज ऑलवेज दैट, बट it comes unfortunately and there are a lot of times that there is an unsaid will and there are a lot of rules जो अभी women के पावर में है, कुछ उसको पता नहीं है। तो ये जो विल सक्सेशन है, कौन से एज से बननी चाहिए, कौन से एज से आपको अपने सन को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, डॉटर्स को ट्रांसफ़र करनी चाहिए, सो हाउ डू यू थिंक एनी काइंड मे बी अ ज्वेलरी ऑफ अ विमेन टू लैंड बैंक, कैसे आप सजेस्ट करेंगे? ये थोड़ा सब्जेक्ट नेगेटिव है बट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं 2 मिनट लूँगा
बट इसमें आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि जिस रेट से आप लोग वेल्थ कमा रहे हैं वो ज़्यादा है जिस रेट से आप वेल्थ खर्च कर रहे हैं उससे, तभी तो वेल्थ एक्यूमुलेट हुई। तो ये एक्यूमुलेट क्यों हुई? लेके तो कोई नहीं था। तो दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि अगर भविष्य में मैं इतने पैसे ना कमा पाऊँ तो ये वेल्थ मेरे लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो अच्छा एडवाइस मिलना चाहिए ताकि रिटर्न सबसे ज़्यादा बढ़े, उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब वो एफडी है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, बिजनेस है, वो मेरे को नहीं मालूम, वहाँ पे क्लाइंट एसोसिएट्स काम करते हैं। बट दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि अगर बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्क आ गया तो मेरी वेल्थ अटैच ना हो जाए, ये भी जरूरी है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप हर उस बिजनेस फैमिली को देख लीजिए जो प्रैक्टिकली अपने आप को बोल सके कि मैं बैंकरप्ट हूँ, चाहे वो विजय माल्या क्यों ना हो। उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बंगला भी है, उसके पास घर भी है, और उसके रहन सहन में कोई कमी नहीं है। ऐसे कैसे हो गया यार? इसका मतलब ये है कि जब आप बिजनेस बना रहे हो, जब आप वेल्थ बना रहे हो, तो सही से डिप्लॉय तो करो ही करो, बट इस तरीके से भी डिप्लॉय करो कि अगर मेरे को कभी जरूरत पड़े तो ये उन झमेलों में अटैच ना हो। दूसरी चीज यानी कि जब मैं कमाना रही हूं तो मेरे पास ये वेल्थ अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अल्टीमेटली ये वेल्थ किसको जाएगी? हस्बैंड को जाएगी या बच्चों को जाएगी या पोतों को जाएगी? तब झगड़ा ना हो। आपका माइक ना ऐसे करीब आवाज नहीं आ रही है, ऐसे। अब आ रही है? हाँ। ओके। तो जब आप अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो वो हस्बैंड को जाए या बच्चों को जाए या पोतों को जाए, तो वो इस तरीके से जानी चाहिए या क्लियर होना चाहिए कि उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई लड़ाई हो, है ना? अब वो भी एक सहमति होनी चाहिए कि बेटे को जाएगी, बेटी को जाएगी, किसको क्या जाएगी, अगर भारत में है तो क्या रहेगा, एनआरआई है तो क्या रहेगा। तो ये सब भले नेगेटिव थॉट्स हैं, बट अगर आपने नहीं लिखे, एक बार आप और आपके हस्बैंड ने मिलकर लिख दिया, डिसाइड कर दिया, तो आप ये सोचिए अगली जनरेशन के लिए आपने क्लैरिटी दे दी। बट आपने नहीं दिया तो हर कोई ये सोचेगा माँ ने बोला था मेरा है। फिर क्वेश्चन ये आता है, नीरज ये तो लिखा नहीं हुआ, आप समझ गए, इसको कैसे लिखूं, कल तो मेरे को ही फंस जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। कोई नहीं कहता आप अपनी सारी ज्वेलरी लिखो, आप ये लिखो इस लॉकर का सारा कंटेंट मेरी बेटी का, और दूसरे लॉकर का सारा कंटेंट मेरे बेटे का। कहाँ लिखा आपने कि आपके पास कितने सिक्के और कितनी गिन्नी और कितना सिल्वर है? नहीं लिखा ना? ठीक है। पर अगर आपने लिख दिया तो कल आने वाली जनरेशन को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे केसों की कमी नहीं है जो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, और कोर्ट में कोई भी ऐसा केस दिखा दो। मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप गूगल जाके करें, प्रियंवदा बिरला परिवार की है, बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास लॉयर्स की कमी नहीं है, मेरे से बड़े भी लॉयर्स मिल जाएंगे। 2002 में डेथ हुई है, आज तक शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ। और मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, बिरला परिवार की बात कर रहा हूँ, जिनके पास मेरे जैसे 100 लॉयर जब चाहें तब चाहें आ जाएं, वो नहीं करवा पाए। गूगल करिएगा, आपको मतलब डरावना आ जाएगा सपना। ठीक है, आपको पता नहीं, मतलब मैं महाराष्ट्र, मैं वैसे राजस्थान से हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। आप गूगल करिएगा बाला साहब ठाकरे की विल चैलेंज हुई थी कि नहीं। आप जरा सर्च करिएगा राजेश खन्ना की एसेट्स, राजेश खन्ना की बेटी ने घर क्यों बेचा, तो स्टोरी मिलेगी आपको। तो इन सब के, अच्छा चलिए, मुकेश अंबानी नहीं, धीरू भाई अंबानी के पास समय नहीं था विल लिखने का। That is one point जिसको आप बता सकते हैं कि उनके पास समय नहीं था विल लिखने का। अब आप ये सोचो, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दूंगा और शायद इनके लिए भी शायद थोड़ी आंखें खुले। 2002 में डेथ हुई, 2002 से लेकर 2008 तक रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ा ही नहीं। ऐसे दो लॉजिकल आदमी भी मेरे को ये नहीं समझा पाए कि क्यों नहीं बढ़ा, पर मैं आप सबको समझा सकता हूँ, क्योंकि 2002 से लेकर 2008 तक जो भी प्रॉफिट मुकेश अंबानी कमा रहा था वो अनिल अंबानी को दे रहा था, क्योंकि यही जो हुआ था ना कि रिलायंस इंडस्ट्री मेरा, और तू जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए पैसे मैं दूंगा, ये सेटलमेंट हुआ था। तो ये देखिए, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिताजी के पास समय नहीं था विल लिखने का।
मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मेरे क्लाइंट नहीं है और जिसके बारे में गूगल देवता को सब मालूम है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत क्लैरिटी दे सकती है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जमीन से उठे हैं, मतलब जिन्होंने 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इकट्ठे किए, अगर उन व्यक्ति की शुरुआत 10 करोड़ से होती तो वह स्टार्टअप बिरला होते। तो आप किस तरीके से अपनी अगली पीढ़ी को ये बेनिफिट दे सकते हैं? याद रखिए, आप जो करोगे भाई, आपकी मान लीजिए शुरुआत शुरू से हुई तो आज आप 10 करोड़ 100 करोड़ के परिवार में। अगर आप इन चीजों को ध्यान से कर लें और अगली जनरेशन स्मार्ट है, सारी अगली जनरेशन स्मार्ट है, तो वो 10,000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। बट अगर ये नहीं करोगे तो उनका समझ आएगा कौन सा किसका, कहां पे लिखा है, क्यों लिखा है। तो आपके लिए ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन 10,000 करोड़ की हो, तो आप उनका समय इन बातों पे ना लगने दें। ये 3 चीजें हैं, क्रिएट वेल्थ, प्रिजर्व। जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो बचाएं, सही एडवाइस मिले ताकि उसे बचा के रखें, भविष्य में आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रांसफर स्मूथ होना चाहिए और अगली जनरेशन के लिए क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए। जब आपने बोला कि ट्रांसफर होनी चाहिए, तो जब हम कंपनी बनाते हैं, सपोजिंग समबडी हैज 2 चिल्ड्रन, डॉटर, सन, वाइफ, तो उस कंपनी के अंदर शुरू दिन से ही उनको उसी तरह से डालना चाहिए या हम कैसे करना चाहिए? लाइक अगर कोई कंपनी फॉर्म करता मैं है। दोनों एग्जांपल देता हूँ। विजय पथ सिंघानिया की वीडियो आपने कितने नहीं देखे? देखे आपने? ओके, स्टोरी अबाउट स्टोरी सुनाता हूँ। रेमंड्स का नाम सुना आप लोग? तो गूगल करिएगा विजय पथ सिंघानिया का वीडियो। वो हर 15 दिन में एक वीडियो डालता है अपने बेटे को गाली देते, है ना? रेमंड्स के मालिक है, कंपनी बनाई, आगे लेके गए। सर ये इनमें से कोई मेरा क्लाइंट नहीं है ना, और जो मैं बोल रहा हूँ अवेलेबल है, ठीक है? तो मेरे ऊपर मनाने का दावा ना किया जाए। तो रेमंड्स कंपनी बनाई, आगे लेके गए, शेयर्स अपने बेटे को गिफ्ट कर दिए और बाद में उन्होंने ही कोर्ट में केस किया कि मेरे बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया। और कोर्ट ये बोलता है सर गिफ्ट तो इररिवोकेबल है, दे दिया तो दे दिया। मैं क्या करूं? आपने अपनी विल एंड विश दिया था, यानी कि, और ये काम भारत में 99% लोग, हाँ ये काम भारत में 99% लोग करते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटे को कुछ नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना उसकी जरूरत है, कंट्रोल दे देंगे, शेयर होल्डिंग नहीं देंगे। That's one। दूसरी चीज, मुकेश अंबानी सब कुछ अपने नाम पे है पर विल भी नहीं लिखी, यानी कि बताया भी नहीं कौन सा किसको है, तो भी दिक्कत है, ठीक है? दूसरी चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बड़ी फैमिलीज कर रही हैं आजकल, धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है। गुजरात में, सॉरी जयपुर में 6 फैमिलीज कर चुकी हैं। मतलब अगर आप टॉप 20 फैमिलीज देखोगे उसमें 6 फैमिली कर चुकी हैं। इंडिया में मुकेश अंबानी जी के बाद सबसे बड़े लोग अदानी जी, गौतम अदानी जी, करेक्ट? सबसे अमीर आदमी वही है। उनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस। उनके पास कितने शेयर होंगे उसके? आप मेरे को एक तुक्का लगाएं, बताइए कितने शेयर होंगे? मेरे ख्याल से 60 करोड़ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 60 करोड़ है, 60 करोड़ या 6 करोड़ ऐसी कुछ है। तो उन्होंने अपने नाम पे कितने शेयर रखे होंगे? नहीं मैडम, एक शेयर रखा है। Oh my God। अच्छा फिर सबसे अमीर कैसे हो गए यार? सबसे अमीर कैसे हो गए? ये बीएससी की वेबसाइट पे है, मतलब एनएससी की भी है। अच्छा। अगर यहाँ पे आप करके दिखा सको तो आप दिखा दो, एक ही शेयर है। तो उन्होंने क्या किया, 5 भाई हैं, बोले यार ये ना मेरे को नहीं चाहिए, तो एक ट्रस्ट बना दी, सारे शेयर्स ट्रस्ट के अंदर, अपने नाम पे एक शेयर। उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन? वो खुद। तो बोला कंट्रोल किसका? मेरा, नहीं तो फिर तो भाई उठा के मेरे को निकाल देंगे। कंट्रोल किसका? मेरा।
इकोनॉमिक बेनिफिट किसका? सब ले लो, पैसे सब बराबर ले लो, जो भी डिविडेंड आएगा सब कमा लो, बट डिसीजन मेकिंग, बिजनेस कैसे चलाना है मेरा, मतलब मैं आपको सब एग्जांपल देता रहता हूं, तो आप गूगल करेंगे तो आपको इस बारे में बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर आप अपने परिवार के हिसाब से इस बारे में सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते वो। आप रोहित पाल दिल्ली के लोग हैं, अब तो वो नहीं है, बट उनकी 3 बिल मार्केट में घूम रही है, 3 बिल है ना सर, गूगल पे तो टाइम्स न्यूज़पेपर में भी आ गया। एक बिल बोलती है मेरे पास है, दूसरी बिल बोलती है मेरे पास है, बेटी बोलती है मेरे पास है, दोस्त बोलता है मेरे को दिया है, एक तीसरी बिल भी है, पता नहीं असली बिल कौन सी है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हाउ टू चेक ये ऑथेंटिसिटी कैसे है बिल? अब जो जिसने लिखी थी वो तो है नहीं, Which one will government will accept? भगवान मालूम होता तो मैं बोलता आप तीनों मेरे पास आ जाओ, पैसे दे दो, मैं कर दूंगा। Whosoever will have a good lawyer. अब देखिए इसी बात को समझिए, प्रियंवदा बिरला जी की बिल 2002 से पेंडिंग है मैम, 24 साल में पता नहीं चला, ये तो अभी भी है। बट नीरज एक चीज़ है इसमें, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारी फैमिली में है, उन्होंने सिंपल ये किया था, बिकॉज मेरी फैमिली सब बिजनेसमैन है, बिल्डर्स है। उनको जब पता कि हमारी हेल्थ ख़राब हो गई थी कोविड में, उन्होंने बिल बनाई, सबको कोर्ट ले गए, वहाँ पे रजिस्टर करवाई बिल, सबको बता दिया कि तुम्हारा ये है, कोर्ट में रजिस्टर करवाया, अब कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसी का एग्जांपल देता हूँ, कल्याणी पुणे वाली फैमिली, कल्याणी बाबा कल्याणी, उनकी मदर की डेथ हुई है 2022 में, शेयर्स उनके नाम पे आ गए, सिस्टर ने अभी केस डाला है, वो तो हो सकता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव सबका है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो आप कह रहे हो वो सही है, अगर बिल नहीं बनाई तो सबसे पहले बिल बनाओ, बट उससे पहले तो पैसे बनाओ है ना, पहले पैसे बनाओ, बिना पैसे के बिल नहीं है, हाँ, फायदा नहीं ना, कोई लड़ेगा ही नहीं। जैसे मैंने बिल नहीं बनाई, पैसे नहीं बने अब तक पहले पैसे बनाओ, उसको उस पैसे बनाने के लिए जब इन्वेस्टमेंट करना है तो ये शायद आपको क्लाइंट एसोसिएट्स के अलावा कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपको बहुत आते होंगे, ये म्यूचुअल फंड ले लो, ये म्यूचुअल, कोई बोलेगा ये नहीं, ये आपके नाम पे मत लो, वाइफ के नाम पे ले लो, इसका ये फायदा है, ये बच्चों के नाम पे ले लो, ये जॉइंट कर लो, ये HUF कर लो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ना करे अगर नेगेटिव जरूरत पड़ी, जब सेफ्टी जैकेट की जरूरत पड़ी तो सीट के नीचे मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा तो फायदा क्या, तो वो होना चाहिए। फिर जब बन जाए, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाए तो बिल होनी चाहिए, इतने भी ना हो जाए कि फिर बिल ही नहीं बनाई, तो बिल होनी चाहिए। फिर उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या मिलेगा, और अगर इतना है कि भाई, क्योंकि याद रखिए परिवार बिजनेस से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो फिर जो बहुत बड़े लोग हैं, जैसे अगर आज आप यहाँ पे देख लें, पिरामल देख लें, जयपुर से, मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बजाज देख लीजिए जयपुर से, सॉरी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इन सब लोगों ने फिर क्या किया, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया है, टूटे ना, भाइयों के बीच में लड़ाई ना हो, डिस्प्यूट ना हो, फिर एक कहानी आती है, कल मेरी बेटी है, कल मेरी बेटी की कहीं पे शादी होगी तो वो एलिमनी वाला वगैरह की सिचुएशन भी आजकल बहुत है मैडम, तो उन सब से बचने के लिए हाउ डू यू प्रोटेक्ट इट, तो फिर ट्रस्ट की कहानी भी थोड़ी बहुत चलती है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि जो आपके नाम पे वेल्थ होती है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ऐसे नहीं होता है कि यार थोड़ा मेरी वाइफ को दे दो, ऐसे नहीं है वो। मेरे कई क्लाइंट से मैंने इंटरेक्ट किया है, एक तो रियल एग्जांपल है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ 57-58 हैं। अब हस्बैंड की अभी भी इनकम आ रही है, कुछ पेंशन है या कुछ आ रहा है, वाइफ की कोई इनकम नहीं है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो वो ज़्यादा वाइफ के नाम पे करते हैं, टैक्स ही नहीं है। और दूसरा वो बोल देंगे मेरे जाने के बाद बच्चे तो सेट है, US में बैठे हैं, मैं उनको पैसा क्यों दूँ, वाइफ को दो, वो अकेली आ रहेंगी, बच्चे पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारे जो अभी ये बता रहे हैं ना कि विल ना बनाना भी ना एक इमोशनल डिसीजन है, कि वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली तो बहुत क्लोज नेट है, इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये हमारे बच्चे तो बहुत क्लोज है।
वो आपने नहीं ना देखना बाद में, वो आपको नहीं पता चलेगा। जब पैसा आ जाता है, जब पैसे की बात आती है ना, तो फिर वो फैमिली वैल्यूज़ वो सब ना थोड़ी साइड हो जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ना, और उसमें नुकसान पूरी फैमिली का है, तो आपको ऐसे प्लान करना है। पहले तो कंट्रोल तो डेफिनेटली नहीं देना अपने जीते भी, बट ये क्लियर कर देना है कि यार मिलेगा क्या किसको, ठीक है। और वो दैट कैन रिजॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स। उस 10% फिर भी रहेंगी, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, बट देयर आर वेज जो ये एक्सपर्ट हैं उसको इतना फुल प्रूफ बना दो शुरू से ही कि आगे जाके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली जहाँ पे जॉइंट फैमिली है, बिजनेसेस जॉइंट हैं, वहाँ पे बहुत इशू रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में पहले तो इतनी वेल्थ ही नहीं होती, हम क्या ही वेल्थ बिल बनाएंगे, बट बिजनेस क्लास फैमिलीज में ये इशू होता है कि 50 साल से बिजनेस चल रहा है, वो बोलेगा मैंने बढ़ाया था या मैंने ज़्यादा काम किया था, वो बोलेगा तूने काम किया था, मैं ऑफिस जाता था रोज़। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहले उसको खुद बैठ के प्लान करो फैमिली के साथ, और इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है ये, उसके लिए टाइम निकालो, अच्छे से प्लान कर लो और एग्जीक्यूट करो। मेरा जाएगा क्वेश्चन, इंडिया में कई बार ग्लोबल लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह इनहेरिटेंस टैक्स की बात होती है, एंड काफ़ी सारी फैमिलीज हमने देखा है जहाँ पे स्केल ऑफ एसेट्स काफ़ी बड़ा हो गया है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, वो कई बार अलग अलग एसेट्स भी एक्वायर करते हैं, बिजनेसेस भी एक्वायर करते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर होने का क्या मेरिट है? थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ एंड देन आई आंसर दिस। तो इसे 4 चीज़ों से ज़्यादा जाना जाता है: एस्टेट ड्यूटी, इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स या सक्सेशन टैक्स। इसका मतलब ये है कि जब मेरी एसेट्स मेरे बच्चों को जाए तो सरकार उस पर भी टैक्स ले ले। आज नहीं लेती, कल लेगी कि नहीं लेगी मालूम नहीं। दुनिया की 48 कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे लेती है, ठीक है। इंडिया में ये टैक्स था 1985 तक। अब उस वक्त लोग कहते हैं कि 20 करोड़, ये सब डेटा है, सही है, ये सब डेटा ये है कि 20 करोड़ खर्चा था एडमिनिस्ट्रेशन का और 14 करोड़ रुपए की टैक्स मिलती थी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, सब कुछ राजीव गांधी को जाना था, तो टैक्स को बढ़ाते थे। मालूम नहीं क्या सच है। अब 2011 से मैं खुद चिल्ला के कह रहा हूँ कि आना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं है कब आएगा, बट जैसे जैसे इंडिया में एक चेंज देख रहे हैं कि बच्चे यूएस में जाके सेटल हो गए, यूके में जाके सेटल हो गए, जर्मनी में जाके सेटल हो गए, अब इन सारी कंट्रीज में ये टैक्स है। मैं जयपुर की 4 फैमिलीज को जानता हूँ जहां पर बच्चे यूएस में रहते हैं, तो टैक्स है। तो जब ये टैक्स है, इसका मतलब ये है कि दुनिया की एसेट कहीं पर भी हो, कमाई कैसे भी हो, जब ये एसेट्स उनसे उनके बच्चों को जाएगी तो यूएस गवर्नमेंट में, यूके गवर्नमेंट में टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप उन कंट्रीज में देखेंगे तो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत प्रिवेलिंग है। दूसरी चीज क्या होती है, थोड़ा टेक्निकल है बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप यूएस में रहना शुरू कर दो या लंदन में रहना शुरू कर दो, दुबई में तो नहीं क्योंकि दुबई में तो टैक्स नहीं है, बट यूरोप में रहना शुरू कर दो और आपकी एसेट्स इंडिया में है, तो पहले तो आप इंडिया में टैक्स भरोगे क्योंकि यहाँ पे आपने पैसे कमाए। फिर यूएस, यूके, जर्मनी बोलेगा यार मेरे यहाँ रहते हो तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरो। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के यूएस में बेची तो यूएस में भी भरोगे, इंडिया में भी भरोगे, और जो ज़्यादा है वो भरोगे। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, जो ज़्यादा है वहाँ पर दो। तो लोग क्या कहते हैं यार, इसको थोड़ा इसका समाधान करो, इसका सोल्यूशन निकालो। तो अब अगर मैंने ट्रस्ट बना दी तो अब तो मेरे नाम पे नहीं है, मेरी ट्रस्ट के नाम पे है। ट्रस्ट तो इंडिया में ही है, तो मैं खाली कहाँ टैक्स भरूंगा? इंडिया। अगर ऐसा यूएस में है तो खाली कहाँ भरूंगा? यूएस में। तो अगर स्ट्रक्चरिंग इस प्रकार से हो। दूसरी चीज, ये जो डेथ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, सक्सेशन टैक्स है, ये मरने पे लगता है। ट्रस्ट तो मैं 150 साल के लिए बनाऊंगा,
मरेगी नहीं। तो उसमें लिख दिया मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे। तो जब तक 150 साल नहीं हो जाते 3 पीढ़ियों से मैंने उस टैक्स को बचा लिया। बट जिस दिन ये आ गया उस दिन तो बहुत कॉमन हो जाएगा। बट बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो अगर आप इंडिया की काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज देखेंगे तो उन सब ने ट्रस्ट बना के एसेट्स उसमें ऑलरेडी डाल दिए कि पता नहीं। एक चीज मैं पूछूं ट्रस्ट के बारे में कि एक बार आप लोगों को ट्रस्ट बता दीजिए कि हाउ इट इज मेड एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन द बेसिक इनहेरिटेंस। इसी में ऐड कर रहा हूँ, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ किस किस तरीके के एसेट्स आप ट्रस्ट में डाल सकते हैं। तो देखिए ट्रस्ट क्या है, वो डायग्राम दिख रहा है ना, वो डायग्राम दिखा दो बस एक। सो जो आपको डायग्राम दिख रहा है, कोई भी ट्रस्ट ऐसी ही दिखती है, ठीक है। ट्रस्ट प्राइमरली 2 प्रकार की होती है। एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। तो जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी सोसाइटी है, सब पब्लिक ट्रस्ट है। उसमें टैक्स बेनिफिट है, उसमें टैक्स एग्जेम्पशन है, बट आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ी तरीका ढूंढने का क्या है, बेनिफिट इज पब्लिक एट लार्ज। बेटा बेटी, पोता पोती, दोस्त यार नहीं, पब्लिक। हम बात कर रहे हैं फैमिली ट्रस्ट की। फैमिली ट्रस्ट मतलब जो मैं अपने बेटा बेटी, पोता पोती के लिए बना रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे मेरी बेटी की शादी हो रही है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसे पैसे दूं या ना दूं। देना चाहता हूं, दूं, कल भगवान ने करे कोई सिचुएशन खराब हो तो पैसे अटक गए, ना दूं तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा देगा कि नहीं मालूम नहीं, अटक गए। फिर बिजनेस है, 3 भाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक भाई चला रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हो गया कि ट्रस्ट में डाल दो। बेनिफिशियरी किसको रखूंगा, जिसको मैं चाहूंगा। यानी कि गौतम अदानी का एग्जांपल ले लीजिए, 5 भाई, पांचों भाई बेनिफिशियरी। तो वो बेनिफिशियरी कौन है, जिनको डिविडेंड मिलेगा, जिनको पैसे मिलेंगे, जिनको सब कुछ मिलेगा। पर ट्रस्टी कौन, यानी कि चलाने वाला कौन, डिसीजन मेकर कौन, ट्रस्टी। तो ट्रस्ट सेटलर होता है जिसके पास कोई पावर नहीं है, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे डालो। ट्रस्टी कौन, जिसके पास चलाने की पावर, डिसीजन मेकिंग। बेनिफिशियरी कौन, जिसको पैसे मिलेंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, आज मान लीजिए मैं, मेरी वाइफ रहते हैं, एक ही बेटी है, भगवान ना करे हम दोनों को कुछ हो गया तो बेटी तो 12 साल की है, मान लीजिए 18 साल की भी हो तो उसको तो दुनिया समझने में 10 साल लग जाएगा। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सब बेटी के लिए जाए। तो ट्रस्ट बना देते हैं, तो उसमें लिख दिया पैसे किसके, बेटी के। जब तक मैं हूं और मेरी बीवी है हम ही डिसाइड करेंगे। अगर हम दोनों नहीं है तो मेरा भाई ट्रस्टी, मेरी बेटी को हेल्थ के लिए पैसे दे देगा, एजुकेशन के लिए पैसे दे देगा, और जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी तो वो कंट्रोल कर देगी। अगर मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो मैंने उसको पैसे उसकी ट्रस्ट में दे दिए, वो बेनिफिशियरी है। तो कल कोई एलिमनी वगैरह की सिचुएशन आती है तो इस पैसे के ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता। कल मेरे बेटे की शादी होती है तो बहू के ऊपर डाउट है तो ट्रस्ट में एसेट्स डाल दी तो एलिमनी क्लेम नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक है कि एलिमनी क्रिएट, जो आपने जो पॉइंट बोला कि बहू पे ट्रस्ट नहीं है एंड हम उसमें सेट्स डालते हैं, तो इफ देयर इज अ डिवोर्स इन योर चिल्ड्रन हैपनिंग इन एनी केस, तो वो उसको नहीं, वो उसमें अकाउंटेबल नहीं होगी। So, because ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो आज बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, so डिपेंड करता है कि मैं किसको बात कर रहा हूँ। आपको बात कर रहा हूँ तो ये नहीं बताऊंगा, बट दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ तो यही बताऊंगा, बट अलग अलग पर्पसेस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप वेल्थ कमा रहे हो और आप भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा के रखना चाहते हो जो कि हर प्रकार के रिस्क से बचे रहे, तो उसे ट्रस्ट में। तो किसी भी प्रकार का रिस्क, चाहे वो फैमिली से आए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हिंदुजा ब्रदर है, 4 भाई थे, चारों भाइयों के दुनिया भर में एसेट्स फैली हुई थी। चारों भाइयों के बीच में एग्रीमेंट था
कि नाम भले ही किसी का हो, हर एसेट चारों की है। एक भाई की डेथ हो गई, उसकी बीवी और उसके बेटे ने उसकी एसेट्स बेच दी। बाकी भाइयों ने बोला क्यों बेची? उनकी एसेट्स थी, बिल से हमारे पास आके बेच दी। तो ये सब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, टैक्सेशन बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। पहले हमने नहीं देखा था, मतलब आज से 10 साल पहले से, मतलब कानून इतना एक्टिव हो गया है कि आपने थोड़ा सा डिफॉल्ट किया, सब एसेट्स पकड़ के सीज कर दी। तो इन सब चीजों में आज की डेट में डर ये लगता है कि मेरी वो साइड पॉकेट किधर है, लीगल साइड पॉकेट, यानी कि कुछ पैसा जिससे मैं व्यापार नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, ग्रो करता रहूंगा। अगर कुछ हो तो मेरा रहन सहन, खाने का हिसाब किताब, घर वगैरह, घर बंगला ना हो। अब उस ट्रस्ट में मैं क्या डाल सकता हूँ? उस ट्रस्ट में मैं वो हर चीज डाल सकता हूँ जो कि वैलिडिटी मैं ओन कर सकता हूँ। मैं ज्वेलरी डाल सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल एसेट्स खरीद सकता हूँ, मैं बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ, मैं उसकी फिक्स डिपॉजिट कर सकता हूँ। बट इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। इनकम टैक्स का बेनिफिट है चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो कि पर्पस नहीं है, क्योंकि उसमें बेनिफिशियरी परिवार नहीं होता, उसमें बेनिफिशियरी जनता होती है। ठीक है, तो जो प्राइवेट ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फैमिली ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो आजकल जिस प्रकार से, जैसे अभी गौतम सिंघानिया की वाइफ ने क्लेम डाला तो बोला आपकी 75% एसेट्स मेरी। ऋतिक रोशन का डाइवोर्स को तो कहते हैं 400 करोड़ रुपए दिए। तो इतनी सारी अमाउंट्स लोग अपनी एसेट्स, और इंडिया में जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड, प्रीनप इनवैलिड है, यानी कि इंडिया में शादी से पहले किया गया प्रीनप इनवैलिड है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि ये कहा जाता है कि शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी सैक्रामेंट है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एक कॉन्ट्रैक्ट उसे कैसे ओवरराइड कर सकता है? तो कई पर्सपेक्टिव्स हैं इस प्रकार से, इसीलिए ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पॉपुलर है, अलग है। विल का जो आपने बताया, इसमें अगर किसी विल लिख रहे हैं, आज भी उसकी उनकी नहीं हुई, कुछ विल लिख रहे हैं, उससे पहले किसी और ने गिफ्ट लिखवा लिया, तो वैलिड होता है विल में? मैम, चक्कर क्या होता है कि लिखवाया और लिखा, जो इस बात की गवाही दे सकता है वो है नहीं जब विल एग्जीक्यूट होती है। और जज को कोई तरीका ये नहीं है प्रूव करने का कि उससे लिखवाया गया या उसने लिखा है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि लिखवाया है वर्ष, और अभी है प्रेजेंट में, और अब तो वो जितनी मर्जी विल लिखे, लास्ट विल प्रिवेल। यानी कि अगर मैंने आज एक विल लिखी है और मैं 2 साल बाद बोलूं मैं इस विल को नल एंड वॉइड करना चाहता हूं, आराम से कर सकते हैं। उसमें गिफ्ट वाला लिखा हो तो कि गिफ्ट दिए। गिफ्ट और विल में अंतर है। वही पूछ रहे, गिफ्ट मतलब क्या होता है? दे दिया, Gift once given. फिर वापस नहीं आ सकता। अब वो अभी प्रेजेंट में है कि मैंने जबरदस्ती दे लिया तो दिया। अच्छा, मतलब गिफ्ट दिया मींस चैरिटी डन फॉर एग्जाम्पल है, विजयपत सिंघानिया ने रेमंड्स के शेयर्स दिए, 3 साल से तो हम जानते हैं लड़ रहे हैं, अभी तक वापस नहीं आए। कोई भी तरीका नहीं है उस पे केस करके गिफ्ट डीड को कुछ लेने का। अगर विजयपत सिंघानिया को वापस मिल गए तो तरीका पता चलेगा। सही बात। हमें नहीं। नाउ वी बिल लिखी ही नहीं है अभी, और वो प्रेजेंट में भी है, पर वो कहती है कि मेरे से जबरदस्ती गिफ्ट ले लिया, लिखवा दिया उन्होंने। देखिए मैम, याद रखिए गिफ्ट और विल में अंतर क्या है। गिफ्ट क्या है? मैं भी हूं, आप भी हूं, मैंने दे दिया। विल मतलब मैं नहीं हूं तब जाएगा। हाँ। तो जो लिखा है वो जीते जी दे दिया तो गिफ्ट है, इररिवोकेबल। और लास्ट में विल में लिख जाए कि मैंने जबरदस्ती उन्होंने लिया था, मैंने उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं ना, है। उसका कोई वैल्यू नहीं। I have got a question. इधर हम काफ़ी सारे बिजनेस तकनीक में ऐसा देखते हैं जहाँ पे प्रमोटर ड्रिवन, फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस हैं, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स एंड एवरीथिंग कंपनीज ग्रो करती हैं, काफ़ी प्रॉफिट एक्यूमुलेट करती हैं, एंड देन वो पैसा कंपनी के अंदर रहता है। सो इवेंचुअली वी सी कि प्रमोटर्स के अंदर कई बार ये फीलिंग आती है कि कंपनी तो बहुत अमीर हो गई है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, and they want to take money out from the company in their individual names. One is very simple कि आप सैलरी या डिविडेंड के उसमें ले लें, but then there is a double tax implication. Is there any other way which is there which people can exercise, people can figure out?
देखिए 2-3 तरीके हैं जो किए जा सकते हैं, बट हमारे में ना एक कहानी होती है कि एक है कि कानून इसे रोकता नहीं है पर कर सकते हो, और दूसरा होता है कि कानून इसलिए नहीं लिखा गया कि आप कर सकते हो, मतलब फॉर्म ओवर सब्सटेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म की कहानी है। तो कानून तो क्लियर है कि 2 बार टैक्स भरना पड़ेगा, बट कुछ तरीके हैं, मतलब बॉर्डर लाइन केसेस हैं जिनके साथ किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो पैसे कब कमाए थे, कितने साल पुराने हैं, कैसे हैं, डीमर्जर करना है, मर्जर करना है, वो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, हमने कई परिवारों को देखा है वो करते हुए। हाँ, तो अगर कोई ऐसा केस है तो थोड़े से डेटा पॉइंट चाहिएंगे जो किया पॉसिबल है। Now we are asking, आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं प्लीज ओपन आइए पूछिए। नहीं, हाँ हाँ पूछिए प्लीज। नहीं, मैं तो बस वही पूछ रही थी, वो एलिमनी का बोल रहे हैं ना कि हाँ। ट्रस्ट बना दो तो एलिमनी नहीं देने से भी चलेगा, नहीं मतलब राइट है क्या? सो क्वेश्चन ये है, एलिमनी के केस में ट्रस्ट की एसेट्स इंक्लूड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ है, अगर डाइवोर्स का केस फाइल हो गया है, हाँ अगर डाइवोर्स का केस फाइल हो गया है तो चाहे मैं ट्रस्ट बना दूं चाहे कुछ भी कर दूं, देने पड़ेंगे। बट अगर ट्रस्ट बनी हुई है और उसके अंदर एसेट्स डली हुई है और फिर डाइवोर्स का केस फाइल होता है तो मेरी नेटवर्थ में ट्रस्ट की एसेट्स काउंट नहीं। तो बैक डेट्स में बनाते हैं ना लोग आगे से, बैक डेट में बना सकते हैं, बैक डेट में ट्रांसफर कैसे करेंगे? ट्रांसफर तो आज की डेट में ही होगा। सो पहले क्या होता था मैम, जब आप बैंक में गए, नीरज अग्रवाल का अकाउंट है, एन अग्रवाल का अकाउंट है, नीरज का अकाउंट है। अब तो वो बैंक में पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट और भी कुछ लगता है। बैंक को हमसे ज्यादा मालूम है। कभी कभार बैंक बोलता सर एक अपनी मैच्योर हो गई आपकी, आपको पता नहीं है, ये ले लो। तो वो कहानी थोड़ी सी कम होती जा रही है और कोई बात नहीं। So, ट्रस्ट में जो एसेट्स है बाय लॉ, मतलब कि एल्युमिनियम कुछ भी होता है तो वो उसमें इट इज नॉट अलाउड टू, आई मीन दैट्स लॉ दैट यू कांट। देखिए भारत में 48,000 कानून है, तो मैंने सारे तो नहीं पढ़े हैं, नहीं। बट लार्जली हाँ थंब रूल क्या है, अगर डाइवोर्स का केस फाइल होने से पहले ट्रस्ट बनी हुई है और ट्रस्ट फंडेड है तो ट्रस्ट की एसेट्स एलिमनी के लिए कंसिडर नहीं होंगी। बस वो लॉ है। अब क्वेश्चन ये है कि वो एक दिन पहले बनी है तो कोई बोलेगा अरे नहीं यार एक दिन पहले तेरे को मालूम था तो कल डाइवोर्स का केस है, वो सब कहानी फिर अलग चलती है। मतलब दोनों तरफ के वकील पढ़े लिखे हैं, लड़ते हैं आपस में, ये कहानी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर मान लीजिए कंपनी एनसीएलटी में गई बट उसके प्रमोटर ने उसमें से एसेट्स 2 साल पहले निकाली हुई है, तो अनलेस इट इज प्रूवन अदर साइड वो भी टच नहीं हो सकती। अब अगर प्रमोटर ने पर्सनल गारंटी दी हुई है और प्रमोटर ने 3-4 साल पहले अपनी वाइफ को एसेट्स गिफ्ट की हुई है और वाइफ कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, तो वाइफ की एसेट्स भी टच नहीं हो सकती। स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट है, आपके पास आधा किलो तक का सोना के लिए कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास वो सोना कहां से आया। तो ये सब है। जो बिल है वो प्लेन पेपर में होना चाहिए, कुछ इसका भी फॉर्मेट होता है? नहीं, कानून ये बोलता है बिल आप प्लेन पेपर पे लिख सकते हो, बट जनरली आज की बिल है, पुरानी बिल है, कितनी पुरानी जैसे बिल आप है, बिल नई लिख के लिखी है। किसी फ्रेंड के पास रखवा दो या हाँ। किसी रिलेटिव के पास तो रखवा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टैम्प पेपर पे लिख के दोगे तो कम से कम मालूम तो चल गया यार इस दिन लिखी थी, क्योंकि स्टैम्प पेपर पे डेट होता है। हाँ। 2 विटनेस ने साइन कर दिया जो जरूरी है, तो एटलीस्ट वो कोर्ट में गवाही देंगे कि मैंने इसने लिखवाई नहीं थी, लिखी थी, ये तो प्रूफ नहीं है। फिर एक एग्जीक्यूटर लिख दो जिसका काम है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। बेनिफिशियरी लिख रहे हो तो उसका पैन नंबर डाल दो, ये तो नीरज अग्रवाल भारत में बहुत सारे हैं। तो ये सब थोड़े बेसिक चीजें हैं जो आप ध्यान रखना चाहिए। जैसे बैंक वाले ऑलरेडी नॉमिनेशंस लिखवा के रखते हैं, हाँ। तो जनरली हस्बैंड्स का लेते हैं, तो अगर बच्चों के लिए विल लिखनी है तो वो कैसे होता है फिर? बच्चों को नॉमिनी बना दो, बैंक वाला बैंक बच्चों को नॉमिनी बनाने से बट बिल्कुल इफ दे फर्क आर नहीं। माइनर? तो नॉमिनी बच्चे ही बनेंगे, जब तक बच्चे माइनर हैं तब तक लीगल गार्जियन हस्बैंड है।
वो तो अगर आप विल भी लिखोगे तो वो माइनर है, तो साइन तो उनके भी नहीं चलने वाले, तो पैसा तो उसी अकाउंट में जाएगा जिसमें पिताजी गार्जियन है। बट विल और नॉमिनी एक साथ एक ही चीज लिखना। What is the right age to make will? जब पैसे हो जाए। विल में लोन लिखना अलाउड नहीं है, लिख भी दूंगा तो कोई लेगा नहीं। तो मतलब आप ये बोलते हैं कि once you have created wealth and you have children, so you should start writing will. हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ बनाया, प्रिजर्व किया, ट्रांसफर किया, ताकि अगली जनरेशन 10,000 करोड़ को जा सके। नहीं तो कई साल इसी बात में झगड़े में लग जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूट क्या होना है, किसको होना है, कौन सा होना है। वेल सेड। बहुत ही एनलाइटमेंट था। आप कुछ पूछना चाहेंगे? एनीथिंग मोर? So the client associates, we thank you. And we thank you, Shrishti, and all of them. They made an effort to come and enlighten us. And hopefully, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद हम सबको पता नहीं थी। विल का भी हमें नहीं पता था कि वाइट पेपर पे भी बनती है विल, एंड उसकी मान्यता होती है, फुल मान्यता है। एंड ये जो ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि हम उसको डाल सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी न्यू कि उसमें जो चीज़ है वो अगर डिवोर्स होती है तो एलिमनी नहीं देनी पड़ती, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्लानिंग। एंड अगर आपके घर में 3-4 बॉयज़ और बच्चे हैं, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जब हम पार्टनरशिप डालते हैं उसी समय हम विल भी बना सकते हैं साथ में। Anything more we want to know, because they are professionals and we all belong to business houses and want to know more. She has one question. हाँ, please. Yeah, that's why they're here, because She's asking if there is only one son, then also there should be a will. So डराना है आपको या नहीं? She is very much. देखिए, जो डिस्कशन हो रहा है एलिमनी का, बहू के पर्सपेक्टिव से सोचें, बहू के पर्सपेक्टिव से सोचें। अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ बेटे का, पोते का, पड़पोते का, नहीं तो बिल के थ्रू सब कुछ बेटे को जाएगा, है ना? तो डर गए आप थोड़ा। दूसरी चीज, अगर स्टेट ड्यूटी आ गई तो जब बच्चे को जाएगा तो फिर गवर्नमेंट 40% ले जाएगी। दूसरी, तीसरी चीज, अगर कुछ नहीं भी है, एक सादे कागज पे 2 विटनेस, आपके साइन, all my right, interest, title in all the assets that are in my name belongs to my husband. If he predeceases me, it belongs to my son. अब और भी जरा करना है तो जैसे Right paper also you have to have witnesses. हाँ, विटनेस तो जरूरी है ना मैम। Otherwise the will is not. हाँ, वो फिर बाकी दूसरी चीज क्या है मैम, आजकल ना जमाना इतना बदल गया है। मान लीजिए मैं, जैसे मैंने बताया, मेरे को और मेरी वाइफ को कुछ हो गया, मेरी बेटी माइनर है, तो वो क्या ही ओन कर लेगी? अच्छा 18 साल की है, उसको सारी एसेट्स चली गई, तो विल है तो थोड़ी सी कहानी लिख दूंगा कि भाई हेल्थ और एजुकेशन के लिए उसके पास पैसे हैं, बट वो पैसे मेरे भाई से पूछ के खर्च करेगी, और उसके पास पूरा कंट्रोल तब आए जब वो 25 साल की हो जाए। तो आपने अपनी बेटी को बचा लिया ना। याद रखिए, वेल्थ जितना बड़ा बेनिफिट है, जैसे जैसे उसका क्वांटम बढ़ता है, उसके नेगेटिव भी धीरे 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 आते हैं, है ना? तो ये सब लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये जस्ट ऐड करना चाहता था कि 18 साल में अगर उसको 100 करोड़ मिल गए तो काम नहीं करेंगे ना। तो जनरली ट्रस्ट में ऐसा भी होता है कि जिसमें कंडीशन डाल दी जाती है कि हर महीने इनको 50,000 रुपये मिलेंगे 25 साल तक। कुछ भी आप कंडीशंस देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और उसका गार्डियन कौन होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और गार्डियन भी उस पैसे को टच नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेनिफिशियरी आपके बच्चे हैं। बस गार्डियन को एक फीस मिलती है, कुछ भी होता है, बस उसको फीस मिलेगी कि वो सर्विस दे रहा है। Guardian can be family member also. कैन बी उनको एक फीस मिल जाती है कि आप फीस ले लो, बट आप ये ट्रस्ट चलाओगे। Family member will not take this as a fees. वो मतलब वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट जनरली क्या होता है कि गार्डियन जो होता है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप उसको 1 रुपया दे रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है। जब तक बच्चा वर्डली वाइज नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने तो ऐसी भी ट्रस्ट लिखी है जहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला, अगर ये पारसी से शादी ना करे तो कुछ नहीं जाएगा इसे। हाँ, वो कंडीशन आप सेट कर सकते हो पूरी।
और और पारसी में तो क्लोजली निट कम्युनिटी है तो और जो ये बोल रहे थे ना, ट्रस्ट को क्या कहते हैं, इट्स अ सेपरेट पर्सन। उस कोई अलग में नहीं हो, कुछ भी हो, वो अलग पर्सन है, उसका पैसा है ट्रस्ट का, उसको कोई टच नहीं कर सकता। इट्स अ डिफरेंट पर्सन, एंटिटी अलग है, चाहे आपने बनाई है बट उसका बेनिफिशियरी अलग है ना। तो जब एंटिटी अलग हो जाती है उसको कोई टच नहीं कर सकता, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बच्चों को 18 साल में 100 करोड़ देने, वो एज अ पेरेंट आप अभी से प्लान करोगे। अब मान लो पढ़ता ही नहीं है, उसको 100 करोड़ दोगे ना, 2 साल में खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो उस केस में भी ये भी हमने भी सुना है कि 35 साल तक जब तक वो अपने पैरों पे कुछ खुद ना कर ले, उसको मेरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैसा कमा सकता है और वो पैसा मैनेज भी कर सकता है, तब उसको मेरी आप पूरी वेल्थ दे दो, तब तक उसको इतना शेयर मिलता रहेगा, या उसको बिजनेस में हेल्प करने के लिए आपको इतना पैसा देते रहना हर साल। तो लोगों ने बनाया हुआ है, अपने जो स्पेशली बिजनेसमैन होते हैं उनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। तो बच्चों को भी सारा एकदम से नहीं देते, जैसे वो बता रहे सिंघानिया जी ने सारा दे दिया, अब क्या भरोसा है ना। तो आप कंट्रोल नहीं दे सकते, इसलिए ना एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने केसेस देखे हैं, तो जो रियल टाइम केसेस होते हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं ना, उससे लर्निंग बहुत ही डिफरेंट होती है। तो वो जो बता रहे हैं ना, उसमें बहुत केसेस हैं और हर बंदे की स्पेसिफिक नीड पे होता है। I think very well done. I think आज so enlightenment है because I mean I'm in business for so many years, but what you talk about. I think you've been very kind to us and our gratitude. So we'll give you a round of applause. Thank you, Client Associates, who have been our sponsor for the events. जो आप इतने अच्छे events देख पाते हैं because of our great sponsors. So round of applause to Shrishti,